Hey everyone, welcome back to another video lecture on Arsh Bionym. So as you can see on the screen, we are going to start with the blood vascular system of the prawn, nothing but the circulatory system of the prawn. Now before starting this video, I would suggest you guys to watch the previous videos under type study of prawn. जैसे हमने cover कर लिया है morphology, digestive system and respiratory system. तो पहले ये videos देखो, then followed by this video because थोड़े कुछ terminologies ऐसे हैं ये video में जो हमने previous videos में discuss किए थे. ठीक है, so ताकि आपको कोई भी confusion ना हो, you guys watch those videos first followed by this video. ठीक है जी. now without wasting much of our time let's get started. तो यहाँ पर देखो blood vascular system of prawn में या फिर the circulatory system of the prawn, इनका जो circulatory system होता है वो open type of circulatory system होता है. अब open type of circulatory system मतलब देखो अभी आप लोग डिग्री स्टूडेंट्स है तो आप सबको पता होना चाहिए कि circulatory system टू टाइप्स के रहते हैं, open type of circulatory system and closed type of circulatory system. Now open type में क्या रहता है, the blood is not confined to vessels, whereas in closed type of circulatory system blood will flow through arteries, veins and कैपिलरीज, राइट. तो ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप में ये डिफरेंस है. अब देखो प्रॉन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है दैट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. अब ये पार्ट्स क्या है भाई, पहला है जी पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, साइनस और ब्लड लैक्यूने एंड ब्लड चैनल्स. तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्रॉन कंसिस्ट या फिर कंप्राइज ऑफ दीज 5 थिंग्स. तो अब देखो अपन को क्या करना है, पूरी वीडियो में एक एक करके ये 5 चीजों को ही डिस्कस करने का है. तो यहाँ पे फर्स्ट विल स्टार्ट विद द पेरिकार्डियम. ओके जी. सो जंपिंग ऑन टू द पेरिकार्डियम. सी, the pericardium is also called as pericardial sinus. This will be your first point. This is wide and spacious sinus. तो पेरिकार्डियल साइनस या फिर पेरिकार्डियम साइनस क्या है, दिस इज वाइड एंड स्पेशियस. नाउ दिस इज फाउंड बिलो द डॉर्सल वॉल ऑफ द थोरैक्स. थोरैक्स के डॉर्सल वॉल के नीचे आपको दिखता है एंड अबाउ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द हेपाटोपैंक्रियाज. तो बेसिकली जो पेरिकार्डियल साइनस या पेरिकार्डियम है दैट इज फाउंड below the dorsal wall of the thorax and above the reproductive organs and the hepatopancreas. अब इन्हें क्या करता है भाई, this encloses the heart. तो pericardium basically will enclose the heart. Now moving ahead with the heart. So we are done with the first thing here जो कि था pericardium, वो हमने कर लिया है. Next moving ahead with the heart. अब यहाँ पर देखो heart, it is muscular and triangular structure. तो heart of the prawn is muscular and triangular in shape. The anterior end is pointed. तो anterior end जो रहेगा इसका pointed रहेगा and because it is pointed we call the anterior end as apex and the broad end is called as base. तो यहाँ पर जो एंटीरियर एंड उसका रहेगा पॉइंटेड रहेगा उसे हम कह देंगे एपेक्स एंड पोस्टीरियर एंड जो रहेगा वो ब्रॉड रहेगा उसे हम कह देंगे बेस. अब ये जो मस्कुलर वॉल है हार्ट का, इट इज परफोरेटेड बाय 5 पेयर्स ऑफ अपर्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज ऑस्टिया. अगर सिंगल रहेगा तो वी विल कॉल इट एज ऑस्टियम बिकॉज यहाँ पर 5 पेयर्स है, प्लूरल है, सो वी आर कॉलिंग इट एज ऑस्टिया. अब ये ऑस्टिया क्या करेगा भाई, ऑस्टिया विल हेल्प इन वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. दैट मीन्स अगर ब्लड जा रहा है पेरिकार्डियम से हार्ट को तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन करने में ही ऑस्टिया हेल्प करता है. बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज इफ द ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम पेरिकार्डियम टू हार्ट दैट विल flow in one direction only, it will not revert back from heart to pericardium. I hope this is clear. अब distribution of ostia के बारे में देखेंगे and one more thing, यहाँ पर मैंने स्टार मार्क डाल के इसीलिए रखी है ये point that heart is enclosed in the pericardium. ये ऊपर भी हमने डिस्कस किया था. If you want to mention this point under heart as well you can mention and if you don't want to mention you can skip that point. इसलिए मैंने अलग से लिखा है वो point. तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, pericardium में it encloses heart. यहाँ पर भी हार्ट के अंडर आप लिख सकते हो हार्ट इज एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम. ठीक है जी. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑस्टिया, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्टिया. तो हम क्या बोले, हार्ट का जो वॉल है उसमें कुछ परफोरेशन है जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं एंड ऑस्टिया विल मेंटेन अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है. यहाँ पर टोटल कितने पेयर है, 5 पेयर्स ऑफ ऑस्टिया. वो कैसे सिचुएटेड है देखेंगे भाई. नाउ द फर्स्ट पेयर ऑफ ऑस्टिया कहाँ पर है, मिड डॉर्सली, डॉर्सल साइड में रहेगा, बिटवीन में रहेगा, मिडिल में रहेगा, तो मिड डॉर्सली. यहाँ पर देखो दिस इज द डॉर्सल ऑस्टियम. ओके, दिस इज द डॉर्सल ऑस्टियम. नेक्स्ट द सेकेंड पेयर इज प्रेजेंट मिड वेंट्रली, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहेगा, मिडिल में प्रेजेंट रहेगा. तो ये लेटरल व्यू में यहाँ पर एक लेबलिंग आपको दिखेगी, दिस इज वेंट्रल ऑस्टियम. ओके जी, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट देखो थर्ड पे कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली. तो यहां पर देखो दिस पेयर
इज द पोस्टीरियर ऑस्टियम. आई होप आपको समझ में आ रहा है थ्रू द डायग्राम. सो दिस इज बेसिकली हार्ट. दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप एज यू कैन सी. आई एम गोइंग टू एरेज दिस अगेन. राइट, तो दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इसके जो ऑस्टिया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ 3 पेयर्स तो कहाँ पर है, क्लियर है. टॉकिंग अबाउट द 4th पेयर, दिस इज प्रेजेंट एंटीरियर लेटरली. एंटीरियर में प्रेजेंट है, लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है. सो दिस एंटीरियर लेटरल ऑस्टियम. सो दिस हियर आर द पेयर ऑफ ऑस्टियम्स that are present anterior laterally. Next देखो जी 5th pair posterior laterally present है. यहाँ पर देखो this ostium here, because this is lateral view, यहाँ पर एक ही ostium नजर आ रहा है, but lateral side में present है तो आगे और वो side भी present रहेगा. So this is latero posterior ostium या फिर posterior laterally ostium. Next, this was all about the heart. Now next we are going to talk about the arteries here. These arteries will help to carry the blood from the heart to different parts of the body. So basically arteries will carry oxygenated blood. ठीक है, वो हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाने में आर्टरीज हेल्प करते हैं. अब ना ये प्रॉन के पास 4 प्रिंसिपल आर्टरीज प्रेजेंट होती है. सो द प्रिंसिपल आर्टरीज ऑफ प्रॉन आर, एक के बाद एक हम आर्टरीज को डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरी और सिफेलिक आर्टरी. ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसी है देखो, सिंगल एंड स्लेंडर है. दिस विल अराइज फ्रॉम द एपेक्स ऑफ हार्ट. राइट, अभी आपको समझाने के लिए मैं अगर ये ड्रॉ करूं, द हार्ट इज ट्रायंगुलर इन शेप. सो दिस इज द हार्ट. दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज. ठीक है, अगर ये हार्ट हो गया ट्रायंगुलर शेप का, नाउ दिस विल अराइज फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट. तो इट विल अराइज लाइक दिस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट. ठीक है जी. नाउ दिस सप्लाइज ब्लड टू द ईसोफेगस, कार्डियक स्टमक एंड हेड. तो बेसिकली मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, जिसे हम सेफेलिक आर्टरी भी कहते हैं, दिस विल प्रोवाइड या फिर दिस विल सप्लाई द ब्लड टू ईसोफेगस, कार्डियक स्टमक एंड द हेड. नेक्स्ट देखो, दिस विल एंटीरियरली जॉइन द एंटेनरी आर्टरीज. नाउ व्हाट इज एंटेनरी आर्टरीज, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली ये मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरीज जो होती है एंटीरियर साइड से दूसरे आर्टरीज को कनेक्ट रहती है, जिसे हम कह देंगे एंटेनरी आर्टरीज. नाउ विल डिस्कस अबाउट द एंटेनरी आर्टरीज. नाउ एंटेनरी आर्टरीज कितने पेयर है, 1 पेयर है. नाउ दे अराइज फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट. ये भी हार्ट के एपेक्स से अराइज हो रही है. 1 ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरी. तो बेसिकली यहाँ पर देखो, इफ दिस इज द हार्ट, ठीक है, यहाँ से क्या अराइज हो रही है, दिस इज मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरी. अब ये एपेक्स से अराइज हो रही है. अब नेक्स्ट क्या है, एंटेनरी आर्टरीज, दे आर ऑल्सो अराइजिंग फ्रॉम द एपेक्स. राइट, तो यहाँ से ऐसे रहेंगे 1 ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरी करके हमने कहा है. सो दीज 2 थिंग्स हियर आर द एंटेनरी आर्टरीज. दे आर ऑल्सो अराइविंग फ्रॉम द एपेक्स एंड यहाँ पर इफ यू नोटिस दे आर एंटीरियरली कनेक्टेड टू मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरी. ठीक है, इट गिव्स ऑफ 3 ब्रांचेस. 3 ब्रांचेस ये गिव आउट करता है एंटेनरी आर्टरी, नेमली पेरिकार्डियल ब्रांच, गैस्ट्रिक ब्रांच एंड मैंडिबुलर ब्रांच. तो एंटेनरी आर्टरी से 3 ब्रांचेस अराइज होती है. उनके नाम क्या है भाई, पेरिकार्डियल ब्रांच, गैस्ट्रिक ब्रांच एंड मैंडिबुलर ब्रांच. नाउ दिस पेरिकार्डियल ब्रांच विल सप्लाई ब्लड टू द पेरिकार्डियम. तो वो नाम से आसानी, पेरिकार्डियल ब्रांच जब हम कह रहे हैं तो इट विल सप्लाई ब्लड टू पेरिकार्डियम. तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजीली याद हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ब्रांच. गैस्ट्रिक ब्रांच विल सप्लाई ब्लड टू द कार्डियक स्टमक. एंड नेक्स्ट क्या है भाई, मैंडिबुलर ब्रांच. नाउ दिस मैंडिबुलर ब्रांच विल सप्लाई ब्लड टू द मसल्स ऑफ द मैंडिबल्स. ठीक है, क्लियर है. तो ये नामों से कहाँ पर वो लोग ब्लड सप्लाई करते हैं वो इजीली याद हो रहा है. पेरिकार्डियल विल सप्लाई टू पेरिकार्डियम, गैस्ट्रिक विल सप्लाई टू कार्डियक हार्ट एंड मैंडिबुलर विल सप्लाई टू द मसल्स ऑफ मैंडिबल्स. क्लियर है, इजी है. नाउ दिस पासेस फॉरवर्ड एंड डिवाइड्स इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्रांच. अभी ये जो एंटेनरी आर्टरी होती है, दिस विल पास फॉरवर्ड एंड आगे जाके वो फिर डिवाइड होती है इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्रांच. ठीक है, so that was it about anterior artery. Next we are going to talk about hepatic arteries. Now these hepatic arteries are also called as hepatopancreatic arteries. तो अब इसके नाम से क्लियर है कि वो ब्लड कहाँ पर सप्लाई करेगा, इजी है. Now ये कितने रहेंगे, these are 1 pair. Now they arise from ventrolateral side. Again we'll draw the structure of the heart. This is triangular structure of the heart. यहाँ एपेक्स से क्या आ रही है भाई, मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरी आ रही है. देन एपेक्स से ही 1 पेयर ऑफ एंटेनरी आर्टरी आ रही है. राइट, अब ये वाला हेपाटिक आर्टरीज क्या है, दे अराइज फ्रॉम वेंटिरो
लेटरल साइड, वेंट्रल साइड से अराइज होंगे और लेटरली रहेंगे। सो ये कुछ यहाँ से अराइज होंगे, लेटरल साइड फ्रॉम वेंट्रल साइड, लेटरली फ्रॉम वेंट्रल साइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दीज आर्टरीज आर हिपैटो पैंक्रियाटिक आर्टरीज और हिपैटिक आर्टरीज, और इन लोग कितने हैं, 1 पेयर है। दे आर जस्ट बिहाइंड द एंटेनरी आर्टरीज and enter the hepatopancreas. So that was it about hepatopancreatic arteries. Next we are going to talk about median posterior artery. Now this median posterior artery arise from the posterior ventral surface of the heart. मतलब देखो वेंट्रल साइड ही प्रेजेंट रहेगी जस्ट लाइक हेपाटोपैंक्रियाटिक आर्टरीज, बट पोस्टीरियर से अराइज होगी, दैट मीन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द हार्ट। अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊं तो जस्ट लुक एट दिस। अगर ये हार्ट है, हार्ट इज ट्रायंगुलर इन शेप, यहाँ से क्या अराइज हो रही है, मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, देन यहाँ से आ रही है एंटीनरी आर्टरीज, ठीक है जी। अब यहाँ से आ रही है हेपाटोपैंक्रियाटिक आर्टरीज, बट दिस मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी इज अराइजिंग फ्रॉम द बेस, बेस से आ रही है। नाउ दिस इज द मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी। नाउ दिस इज शॉर्ट एंड स्टाउट एंड बाइफरकेट्स इनटू 2 ब्रांचेस, नेमली सुप्रा इंटेस्टाइनल ब्रांच एंड स्टर्नल ब्रांच। तो ये वाली आर्टरी आगे जाके 2 ब्रांचेस गिव आउट कर रही है। नाउ आउट ऑफ दोस 2 ब्रांचेस वन इज कॉल्ड एज द सुप्रा इंटेस्टाइनल ब्रांच एंड दूसरे को हम कह देंगे स्टर्नल आर्टरी। आई होप ड्राइंग से या फिर डायग्राम से आपको क्लियर है। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी। अब ये जो सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉर्सल अब्डोमिनल आर्टरी। सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉर्सल अब्डोमिनल आर्टरी। दिस एक्सटेंड्स अप टू द हिंडगार्ड एंड हाइंडगार्ड से वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ब्रांचेस। अब ये सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी किसकी ब्रांच है, मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी का ब्रांच है। अब ये जो सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी हाइंडगार्ड तक एक्सटेंड होगा एंड फ्रॉम द हाइंडगार्ड इट विल बाइफरकेट इनटू 2, मतलब ये भी आगे जाके 2 ब्रांचेस देती है एंड दिस विल सप्लाई ब्लड टू द इंटेस्टाइन एंड डॉर्सल मसल ऑफ द अब्डोमेन। ठीक है, क्लियर है। सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी को इसीलिए भी हम डॉर्सल अब्डोमिनल आर्टरी कहते हैं। तो बेसिकली ब्लड ये कहाँ पर सप्लाई करती है, इंटेस्टाइन्स को एंड डॉर्सल मसल्स ऑफ द अब्डोमेन। नाउ नेक्स्ट कौन सी आर्टरी थी भाई, स्टर्नल आर्टरी। दिस इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी। अब ये जो स्टर्नल आर्टरी है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्टाउटेस्ट आर्टरी, सबसे छोटी आर्टरी मानी जाती है। नाउ दिस पियर्सेस थ्रू द थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। अब ये जो गैंग्लियोनिक मास होता है वो न्यूरल सिस्टम का पार्ट होता है, आगे आपको समझ में आ गया, बट फॉर नाउ रिमेंबर दैट स्टर्नल आर्टरी विल पियर्स थ्रू द थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास एंड बाइफरकेट्स इनटू 2 ब्रांचेस अगेन। स्टर्नल आर्टरी के भी आगे जाके 2 ब्रांचेस है। अब उनके नाम देखते हैं, एक है वेंट्रल थोरैसिक आर्टरी एंड दूसरा है वेंट्रल अब्डोमिनल आर्टरी। नाउ फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द वेंट्रल thoracic artery. Now this ventral thoracic artery will supply blood to the sternal regions of the thorax, abdomen, maxillae, maxillulae, maxillipeds and first 3 pairs of walking legs. क्लियर है। ये ब्लड वेंट्रल thoracic artery ब्लड कहाँ पर सप्लाई करती है, टू द sternal regions of thorax. I am repeating it again. Thorax, abdomen, maxillae, maxillulae, maxillipeds and the first 3 pairs of walking legs. Next we are going to talk about the other branch and that is the ventral abdominal artery, and this ventral abdominal artery will supply blood to the ventral regions of the abdomen, the 4th 5th pair of walking legs. ऊपर क्या था, this will supply blood to the first 3 pairs of walking legs and जो बचे walking legs है उनको blood supply करेगा ventral abdominal artery, that is 4th 5th and walking legs को वो supply करता है blood and it will supply blood to the abdominal appendages जो होती है 6 pairs. ये हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया था, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो एंड इट विल सप्लाई ब्लड टू द हाइंडगार्ड. नाउ मूविंग अहेड, विल नॉट मूव अहेड बट फर्स्ट विल गेट इनटू द डायग्राम ऑफ द हार्ट. यहाँ पर देखो सारे लेबलिंग्स पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है बिकॉज ना ब्रांचेस के भी लेबलिंग्स यहाँ पर है. अब जो आर्टरीज के बारे में हमने पढ़ा है हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ पर. तो ये ट्रायंगुलर शेप का हार्ट है. अब ये हार्ट के एपेक्स से अराइज हो रही है median ophthalmic artery, right? So this thing here is called as ophthalmic artery or median ophthalmic artery. Then देखो apex से ही 2 और arise हो रही है, that is 1 pair of arteries and these are called as antennary arteries, जो हमने ऊपर डायग्राम में भी देखी थी. So these are the antennary arteries. यहाँ पर लेबलिंग प्रेजेंट है. अब ये antennary arteries 3 ब्रांचेस गिव आउट करती है.
नेक्स्ट आर्टरी क्या था भाई, वी हैव डिस्कस द हिपैटोपैंक्रियाटिक आर्टरी। अब हिपैटोपैंक्रियाटिक आर्टरी वेंट्रल साइड से वेंट्रली लेटरल साइड से अराइज होती है। तो यहाँ पर देखो वेंट्रल साइड से अराइज हो रही है एंड दे आर प्रेजेंट लेटरली, ठीक है ना। दोज आर हिपैटोपैंक्रियाटिक आर्टरीज। अब हिपैटोपैंक्रियाटिक आर्टरीज के बाद हमने क्या देखा था, मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी दैट अराइज फ्रॉम द बेस। तो यहाँ पर देखो ये होती है मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी, इतनी सी है मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी। अब नाउ दिस आर्टरी इज गिविंग आउट टू ब्रांचेस एज यू कैन सी, एक है सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी एंड दूसरा है स्टर्नल आर्टरी। दिस इज स्टर्नल आर्टरी एंड ये वाला जो है दिस इज सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी। सो दैट वाज इट गाइस। यहाँ पर देखो अगेन स्टर्नल आर्टरी इज गिविंग आउट वेंट्रल thoracic artery and ventral abdominal artery as you can see here. So this is ventral abdominal artery and this is ventral thoracic artery. So that was all about the arteries. I hope diagram के थ्रू भी आपको जो भी doubts थे वो clear हो गए होंगे. Next we are going to discuss about the blood sinus और the lacunae. यहाँ पर देखो जो arteries present होती है they will open into small hemocoelomic spaces which are called as ब्लड साइनस और लैक्यूने। तो बेसिकली ये जो आर्टरीज होती हैं दे विल गिव आउट ब्रांचेस, दोज ब्रांचेस विल फर्दर गिव आउट ब्रांचेस। तो बेसिकली ये जो आर्टरीज के ब्रांचेस या फिर आप आर्टरीज ही कह लो, ये ओपन होती है इनटू स्मॉल हीमोसीलोमिक स्पेसेस। नाउ दो स्मॉल हीमोसीलोमिक स्पेसेस आर कॉल्ड एज ब्लड साइनस और लैक्यूने। तो बेसिकली वो स्मॉल स्पेसेस को हम कह देंगे ब्लड साइनस और लैक्यूने। अब ये जितने भी ब्लड साइनसेस या फिर लैक्यूने होते हैं द ऑल साइनसेस विल ओपन इनटू वेंट्रल साइनस। नाउ दिस वेंट्रल साइनस इज वन पेयर मतलब दो प्रेजेंट रहेंगे। They are elongated structures and they are present below the hepatopancreas and also these ventral sinuses are interconnected in various places. तो basically जितने भी sinuses होते हैं वो ventral sinus में open होते हैं। ventral sinus कितने हैं, दो है, that is one pair of ventral sinus. अब ये कैसे होते हैं, they are elongated, they are present या फिर they are situated below the hepatopancreas and ये जो ventral sinus होते हैं भले ही दो पेयर है but they are interconnected in various places of the body, ठीक है। Now next we are going to talk about the blood channels. तो जो भी ventral sinus में blood होता है from the ventral sinus the blood is carried to the gills of that side. तो ये वाला ventral sinus will take the blood to the gills of this side. ये वाला ventral sinus will take the blood to the gills of this side. ठीक है। अब ये कैसे जा रहा है, blood is moving from the ventral sinus into the efferent branchial channels. तो basically the blood is not entering directly from the ventral sinus into the gills. Ventral sinus will open into the efferent branchial channels जहां से blood gills तक जाता है। efferent branchial channels का नाम हमने पहले भी यूज किया था, कहाँ पर, जब हम respiration डिस्कस कर रहे थे ना अंडर respiratory system of the prawn, जब हम डिस्कस कर रहे थे course of blood in gills, जब हमने ये टर्म यूज किया था efferent branchial channels. So basically blood जो ventral sinus में होता है that will move into the efferent branchial channels and these efferent branchial channels will take the blood to the gills. अब गिल्स में किस ब्रांच के थ्रू लेके जाएंगे, किस वेसल्स के थ्रू लेके जाएंगे, वो हमने रेस्पिरेशन में डिस्कस किया था। दैट इज द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो बेसिकली ब्लड इज एंटरिंग फ्रॉम द वेंट्रल साइनस इनटू द एफरेंट ब्रांकियल चैनल्स। अब एफरेंट ब्रांकियल चैनल्स कितने हैं भाई, टोटल 6 है ये लोग, दैट मीन्स दे आर टोटल ऑफ 3 पेयर्स। यहाँ पर देखो दे विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑब्वियसली वेंट्रल साइनस से जब भी ब्लड जाएगा दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स के पास जा रहा है तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजनेट होने ही जाएगा, तो ventral efferent branchial channels will carry deoxygenated blood. Now out of these 6 efferent branchial channels, the first channel will supply the blood to the arthrobranchs and the podobranchs. अब ये arthrobranchs और podobranchs क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आप respiratory system वाला वीडियो देखकर आए हो तो आपको पता होगा, and if you haven't watched that video, make sure to watch that video first ताकि आपको कोई confusion ना हो। Next क्या बोल रहे थे हम, फर्स्ट चैनल विल सप्लाई द ब्लड टू द आर्थ्रोब्रैंक्स एंड द पोडोब्रैंक्स एंड द रिमेनिंग 5 चैनल्स विल सप्लाई ब्लड टू द प्लूरोब्रैंक्स। अब गिल्स में जाने के बाद ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा। नाउ द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर द हार्ट। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट गिल्स से तो हार्ट में नहीं जाएगा, द ब्लड विल एंटर द हार्ट थ्रू एफेरेंट ब्रांकियल चैनल्स। तो जितने देखो एफेरेंट ब्रांकियल चैनल्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है, वो गिल्स को सप्लाई कर रही है एंड गिल्स के पास ऑक्सीजनेट होने के बाद जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गिल से बाहर जाएगा थ्रू efferent branchial channels जो है 6 in number and finally the efferent branchial channels will take the blood to the pericardium, pericardium से वो हार्ट में चल जाएगा।
ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है. नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. यहाँ पर देखो, हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? इनटू द आर्टरीज, बिकॉज आर्टरीज विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट विल सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पर हार्ट से ब्लड आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से ऑब्वियसली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा. Now after entering different body parts, the blood will enter the sinuses. All the sinuses will open into one pair of elongated ventral sinuses. हमने कहा तो sinuses will open into the ventral sinus. So basically the blood is moving from the sinus into the ventral sinus. Now these ventral sinuses are opening into the efferent branchial channels. अब efferent branchial channels के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था. Now these efferent branchial channels are 6 in number. The first channel will provide blood through arthrobranchs and podobranchs, whereas the remaining 5 channels will provide blood to pleurobranchs. अब efferent branchial channel कहाँ पर लेके जाएगा ब्लड को? गिल्स में लेके जाएगा. नाउ अब ये वाला जो पार्ट है ये हमने रेस्पिरेशन में डिस्कस किया था, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो. तो एक बार मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ. फ्रॉम द efferent branchial channels the blood will move into the transverse connective channels. Now from transverse connective channel it will move into the lateral longitudinal channels. lateral longitudinal channel से blood क्या होगा? marginal channels में जाएगा. From marginal channels the blood will move into median longitudinal channels, and finally from the median longitudinal channels the blood will enter the efferent branchial channels. तो ये वाला जो है इतना पार्ट, दिस इज द कोर्स ऑफ ब्लड इन द गिल्स. तो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन गिल्स में कैसे हो रहा है, किस गिल्स चैनल से जा रहा है, वो यहाँ पर है. तो यहाँ पर इन शॉर्ट गिल्स दे दिया है, बट गिल्स में दिस इज द प्रोसेस गोइंग ऑन. तो फ्रॉम efferent branchial channels the blood is moving into the gills. गिल्स में जो जितना भी सर्कुलेशन होगा ड्यूरिंग दैट पीरियड of time the deoxygenated blood will get oxygenated. Now that oxygenated blood will enter the efferent branchial channels, and these efferent branchial channels will take the blood to the pericardial sinus. A pericardial sinus the blood is taken to the heart. Then the process is repeated again. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. सो वी हैव कंप्लीटेड द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन एज वेल. नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो अगेन. स्लोली देखो, नोट्स बनाते हुए देखो, आपको सारा का सारा कुछ समझ में आ जाएगा. बट स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग या फिर कुछ भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो आई ऑलवेज टेल यू गाइज, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज @ARSH_BIONYMS. आप यहाँ पर मुझे DM कर सकते हो अगर सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो. सो या लेट्स एंड द वीडियो हियर. ऑलरेडी बड़ी हो चुकी होगी वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बाय बाय.